ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಗೊಂಡ ಮಹಾಸಭಾ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ನ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳಿಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ರಾಜಗೊಂಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದವರ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 16, 17ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ 3 ದಿವಸದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಿಲಾಯಿಗಢ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢನ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಶರಣಸಿಂಹ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಲು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಕರ್ಣ ರಾಜ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವುಗಳು ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡದೆ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಬಾಲಕರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಪ್ರಬಲ ಸಮಾಜದವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕುವ, ದುಡಿಯುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಬೇಕು, ನಮಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಹತ್ತಾರು ಜನರೆದುರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದವರೇ ಭಾರತದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿಟಿ ಶಾಮು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವವರು, ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೊಂಡ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಗ್ಪುರ್ನ ವೀರೇಂದ್ರ ಶಾಹ, ಕಿರಣ್, ಸರ್ಜು ಜಾಮ್ಕರ್, ಅರ್ಜು ಗೋರ್ಖಾ, ಸೋನು ಜಾಮ್ಕರ್, ರಾಜಗೊಂಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್, ರಾಜಗೊಂಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಮು, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಮಮಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಗೊಂಡ ಸಮಾಜದವರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. गोड़वाना समाज का कोई भी सदस्य आपके यहाँ कैसा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हर समाज के लोग भीख मांगते पाए जाएंगे, लेकिन गोड़वाना समाज के लोग वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ये जो चीज है सबसे अनूठी चीज है और अलग चीज है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का थोड़ा सा जो समाज आधुनिकता की ओर जा रहा है, उसको माँ बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें और बच्चे भी ये समझें। जो मोबाइल पे अपना यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं हमारे आदिवासी समाज के बच्चों से ये आशा रखता हूँ, विश्वास भी उन लोग से जीतना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उसके हीरो
और कोई नहीं, उनके माँ बाप। अब्दुल साहब ने जो चीज आप लोग को कहा, उस चीज को, उस बात को आप लोग उनका विश्वास को जीत के रखें, क्योंकि हर आदमी इतना इस समाज का जो कदरदान है, उसकी दृढ़ता को आप लोग सहेज के रखें, संभाल के रखें। जिस संपत्ति को आप खरीद करके ला करके उपयोग करते, लेकिन पूर्वजों की संपत्ति को सहेज के रखिए, पूर्वजों की संस्कार को सहेज के रखिए, पूर्वजों की संस्कृति को संभाल के रखिए, और अपने माँ बाप का नाम आने वाले भविष्य के लिए जो है पीढ़ी, उनसे मैं ये आशा रखता हूँ कि आप उनके इज्जत, उनकी विश्वास और इस समाज की कदरता को बनाए रखेंगे। देश के मालिक हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। चाहे वो इस देश का, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि हम मालिक हैं। ये संविधान कहता है हम यहाँ के मालिक हैं, लेकिन हमें हमारी जानकारी के अभाव की वजह से हम आज मजदूर बने। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए दो पहियों की जरूरत होती है, उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए आपके साथ हमारी महिलाओं की भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुरुष वर्ग घर नहीं, महिलाओं का भी साथ जरूरी है। अगर हमें समाज का विकास करना है तो हमारी मातृ शक्तियों को कंधा से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, और हमारी बेटियों को पढ़ाने में सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं कई जगह देखता हूँ, मैं पूरे भारत घूमता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मैं समाज के कई जगह देखता हूँ, लड़का 1 साल फेल हो जाता है पढ़ने में तो बाप कहता है बेटा कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाना। और बेटी अगर धोखे से एकाध विषय में फेल हो गई तो कहते हैं नहीं ये पढ़ेगी नहीं, वो घर का काम सीखेगी। तो इस चीज को त्यागना होगा, क्योंकि अगर आप बेटा पिट के आए या पीट के आए तो शाबाशी देते हो, और बेटी कहीं लड़के आए तो उसको दुलार करो, प्यार करो, दुत्कार मत करो, उसको भी उसका बराबर सम्मान और अधिकार दो। ये हमारे घर से तैयार होगा, तभी हम सफल और शिक्षित और संगठित समाज बना सकते हैं। कि आप समाज को अगर सही दिशा और आगे बढ़ाना चाहती हैं तो बेटों के साथ साथ बेटियों को भी आगे बढ़ाइए, तभी समाज सक्सेस होगा। और दूसरी चीज, जो मैं नशा छोड़ने की बात करता हूं, उसमें अहम भूमिका हमारी मातृ शक्तियों की होती है। अगर जिस दिन वो चाह लेंगी कि मेरा बेटा अगर नशा करके आया है, उसको ठीक करना है, तो वो चाहेंगी तो तुरंत ठीक कर सकती है। इसलिए आज ये सभा जो 3 दिवसीय सभा है, इसमें मैं जो बोल के जा रहा हूं ये सिर्फ भाषण तक नहीं रहना चाहिए, इस पे अमल भी होना चाहिए। तब तो हम समाज की जो परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारा समाज सफल हो, शिक्षित हो, संगठित हो, क्योंकि इन भाषणों को भाषण तक अगर रहने देंगे तो कुछ भला नहीं होने वाला है। इस पे हमें अमल करना पड़ेगा। आपकी जान है जमीन, आपकी जान है जानवर, आपकी जान है जल और जंगल। ये सब चीजों पर आज आपके पास से छीन कर उद्योगपति लोग ले रहे हैं। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा हासिल करें। आपको शिक्षा हासिल करना प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा हासिल नहीं करेंगे तो हम यहाँ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, संविधान में हमारे देश के हर वासी को, हर आदमी को सामान्य हक दिया है।
आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने के लिए। आपका बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, आपके बच्चे भी इंजीनियर बन सकते हैं, आपके बच्चे भी या देश का भविष्य बन सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं। सिर्फ आप लोग शिक्षा से दूर होने की वजह से वो बड़े बड़े पदों पे नहीं जा रहे हैं। सुनने में आया है कि यहाँ पर तमाम देश के बड़े बड़े मुकामों से यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ महाराष्ट्र से लोग आए हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के कई मुकाम से लोग आए हैं। आप लोग यह जो 3 दिन की सभा है, इसमें हम एक निर्णय पे पहुंचे, हम एक प्लानिंग करें, समाज के लिए प्लानिंग करें, समाज में तरक्की कैसे की जा सकती है, हमारे बच्चे हमारे देश की जो तमाम सुविधाएं हैं उसके हकदार हैं, बराबर के हकदार हैं। आपका इस देश के बड़े से बड़े आदमी, अगरचे यहाँ के प्रधानमंत्री का जो हक है, पूरा हक आपको भी मिलना चाहिए। एक बड़े से बड़े आदमी को जो हक मिलना चाहिए वो आपका भी हक है, क्योंकि सब यहाँ पे समान है। सिर्फ हम यहाँ के दी गई सुविधाओं को हासिल करने के लिए अपना मन बनाए, हम सब एक होकर इसके तरफ आगे बढ़े। बोलिए सर। जय सेवा सभी को नमस्कार। मैं पीटी शामू, राजगौड़ समाज अध्यक्ष बीदर। ये हमारे कॉलोनी राजगौड़ कॉलोनी और शाइन कॉलेज के पास है। यहाँ पर एक भव्य एक कार्यक्रम का नियोजन करे हैं, जिसका 3 दिन उसका प्रोग्राम है। उसका डेट है 15, 16, 17, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है बोले तो हमारे लोगों में शिक्षा कम है, रोजगार कम है और हमारे जो समाज को संविधान में जितना जो मूलभूत सौलभ्य जो मिलने वाला है वो नहीं मिल रहा है। ये खाली कर्नाटक में ही नहीं, पूरा इंडिया में हमारे 52 जगह पे हमारे राजगौड़ समाज के भाई बंधु रहते हैं। और कॉलोनी ऐसे बड़े बड़े कॉलोनी है जहाँ पर 2000, 3000, 4000, 5,000 के पॉपुलेशन है, लेकिन उनको मूलभूत सौलभ्य नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम आगे ये संघर्ष को कैसे लेके जाना, जो गली से लेकर दिल्ली तक ये हमारा आवाज पहुंचना चाहिए मोदी तक, और हमारे समाज को अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार, हमारे को पढ़ाई लिखाई और हमारे को उन्नति के लिए कोई भी कार्य होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए मैं राजस्थान से हमारे लोग आए हैं, एमपी से हमारे लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, चेन्नई से आए हैं और हिंदुस्तान के हर एक कोने से हमारे लोग आए हैं। ज्यादातर लोग महाराष्ट्र से आए हैं। कैसा हो तो महाराष्ट्र में 23 जगह पे हमारे राजगौड़ बस्तियां हैं, जो कम से कम 50 लाख से ऊपर लोग हैं, 50,000 से ऊपर लोग हैं। वो लोगों को यहाँ पर मैं एकत्र कर रहा हूँ ताकि हमारे समाज को उन्नति, शिक्षा और रोजगार ये सब मिलने के बाद भी हमारे समाज को आगे कैसे लेके जाना। ये जो मूलभूत सौलभ्य, ये जो तीनों जल, जमीन, जंगल, ये तीनों हमारे थे, अब हमारे उसमें अधिकार ही नहीं है। ये हमारा अधिकार हम लेंगे और उसके लिए हमारे समाज को आगे लाएंगे और कुछ ना कुछ मूलभूत सौलभ्य मिलना चाहिए। इसके उद्देश्य यही है। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय कर्नाटक। मेरा नाम पीटी शामू है, मैं राजगौड़ समाज का अध्यक्ष हूँ बीदर का।